Start JavaScript array. Okay, we understand what is array with our past learning, but how array works here, let's see this. What is an array? An array is a spatial variable which can hold more than one value at a time. Okay, if you in the context of the JavaScript, if you have a list of items, like here an example of cars, a list of cars, and for example, storing the cars in a single variable, could look like variable car 1, variable car 2, like Saab, Volvo, BMW, Tata, Maruti, variable car 4, Maruti, variable car 5, Tata. However, what if you want to do through the cars and find a specific one? And what if you have not 3 cars but 300? Then when we have a same type of thing in a big number, then we use a data type known as array. Array can hold many values under a single name, and you can choose the values by referring to an index number. Now, index number is the position where that value has been stored. Okay. Now, using an array literals is the easiest way to create a JavaScript. How it has been done? It has been done by this example. You will understand. See, we are going for the JavaScript array, and just we create a demo ID. Save. We create a variable named cars. In cars, in the bracket, we just take a we just take a different cars have from different company, but they are same generating the car, and put it in a single variable, and just we pass that demo and print that variable cars. It has been printed out here. Now, understand this. Space and line breaks are not important. The declaration can span multiple lines. Okay, here declaration can span into multiple lines. Using the JavaScript keyword name, the following examples create array, assign values to it. Here we are creating an object array in an object form. We just create an array in object by using this keyword, having an array, just pass those parameters, no, attributes, sorry, not parameters, attributes, and there the attributes has been printed in a variable car. Access the element of array. How we access? We always access the element of the array by this index number. We have a 3 elements out here. How we are going to have it? We need an indexing number 0. The indexing number 0 is 0. This indexing number 0 is of 0. Sorry, this is indexing number 0, this is indexing number 1, this is indexing number 2. So we need to understand here what is the value of the indexing number 0, and its answer is SAAB sub. Let's make it 2 and run it again. Now we got BMW. So here the indexing number define the position of value within an array. Okay, let's move. Important point, array index starts with 0. We always say that. We always say in general, but it can be done from 1 also in some cases, depend on the various conditions. In more generally, in general we use this part. In general we use 0. Now, variable cars access. How we access the full array? Important thing is how we access the full array. Accessing the full array, we simple pass that. We simple go with the variable in which all the array value has been assigned. Now, if we understand, this is the assignment operator equal to, and all the values assigned in this variable car. We just print car, every value will be accessed. Okay. When array are objects, we need what we
what command we need, what operator we need to return a value. What operator we use to return a value? That is type of. We just use the type of operator in JavaScript return objects for an array. Okay. This has been, we have did these things in the Java, in the data type of the JavaScript. Here, array use number to access its elements. We have read it. Index number 0, 1, 2, 3, whatever. Okay. Now here we are just need to understand the thing indexing. We need to understand the thing indexing. The position 0 is of the John. This is added. Why this concept is revised to understand the object, how the object going to be work in array form. Object uses names to access its members. Now object will always have this property value system. We can't we just need to create a property and that will return John. Now example is this: we create a first name, last name, age as a property, and just we put John Doe and 46, and this will return a value. Okay, just return a value John Doe and 46. Okay, now array elements can be objects. सर अगर इसी array में सर अगर इसी array में हम लोग को ये नहीं शो करना हो कि कौन सा एलिमेंट किस प्लेस पे है और नल प्रिंट कराना हो तो कैसे होगा? नल हमारे डेटा टाइप में नल का प्रयोजन है। हमारे डेटा टाइप में अगर आपको याद हो तो नल हमने यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको याद हो डेटा टाइप का लेक्चर, डेटा टाइप में देखिए तो नल ही लिखते थे उसमें तो नल डायरेक्ट लिखते थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एम्प्टी वैल्यूज हमारे पास तो 3 तरीके हैं। ये नल इज नथिंग, टाइप ऑफ नल इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वो जो एग्जाम्पल उसी का तो है। देखिए यहाँ पे पर्सन जो सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, प्रॉपर्टी वैल्यू आपने इसको टाइप ऑफ पर्सन को प्रिंट कराया तो आया। अब पर्सन को आपने नल कर दिया तो ऑब्जेक्ट कैन बी एम्प्टीड बाय द सेटिंग वैल्यू टू नल, ठीक है। और ये टाइप ऑफ पर्सन क्या, यहाँ पे देखिए पर्सन को आपने नल कर दिया तो वो क्या कर दिया, नल प्रिंट किया। और आप नल कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो क्या प्रिंट कर देगा, नल, ठीक है। समझ आया? यही है। डेटा टाइप में समरी जा चुकी है। देखो बात ये होता है कि अभी अपने पास टाइम है तो we are elaborating the thing, but in the semester formulation we just go for the JavaScript data type. अब JavaScript data type में string, number, array, date, math, random, boolean हम मान लेते हैं कि आप पढ़ लें। लेकिन अभी क्या है, आपके पास टाइम है तो एक्सप्लोर करना है और ज्यादा से चीजों को समझना है, प्रैक्टिकली समझना है कि क्या है। और ये नहीं, हम आप पे डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं कि आप घर पे करेंगे, हम खुद ही से कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं एक बार, इसको रिवाइज किया जाना है, ठीक है। अब आपको समझ में आया ना ऑब्जेक्ट वाला प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि एरे में प्रॉपर्टीज और मेथड्स कैसे यूज किया जाना है। रियल एस्टेट ऑफ जावास्क्रिप्ट एरे आर द बिल्ट इन एरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्ट इन एरे प्रॉपर्टीज और मेथड्स के, ठीक है। एरे मेथड्स आर कवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो जो लेंथ प्रॉपर्टी है, द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन एरे, द नंबर ऑफ एन एरे। तो लेंथ प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे देखो जैसे अब लेंथ प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो क्या है, फ्रूट में है, फ्रूट वेरिएबल में है, एरे में। तो इसकी लेंथ कितनी है, तो आप प्रॉपर्टी डॉट लेंथ से, वेरिएबल डॉट लेंथ से आपको बता दी। यहाँ पे आंसर इसका 4 है। यहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हैं कि भाई फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट क्या है, तो भाई लेंथ -1 क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। फुल लेंथ -1 क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। इनिश और फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप 0 कर दे रहे। अभी देखिए छोटे छोटे कोड हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल
प्रोग्रामिंग में बहुत काम आते हैं। जैसे ये दे देना लास्ट लेंथ -1, अब ये जनरल है। अब यहाँ पे अगर 4 लिख देते आप, ठीक है, लास्ट में 4 लिख देते, तो ये जो है इसकी, ये सॉफ्टवेयर नहीं नहीं एरर नहीं आएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर 5 होगा तो एरर प्रिंट हो जाएगा। हाँ 5 में, 5 में ना ये 5 पे काम कर जाएगा। अब ये जनरल भाषा दे दे रहा है, जनरल तरीका दे दे रहा है। अब ये जनरल तरीके से फायदा क्या होता है कि आप इसको समझ लेते हैं, और हमारे जब काम करने का दिन आता है, जब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम हम एक प्रोटोटाइप का यूज करते हैं। जैसे डेटा टाइप आप क्यों पढ़ते हैं कि भाई ये डेटा टाइप की जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये प्रोग्राम फ्यूचर में इंप्लीमेंट कर देंगे, पूरा मकसद यही है। क्योंकि ये कोई ऐसे कोई जैसे साइंस की पढ़ाई होती है कि नेचर का लॉ है, ऐसा कोई लॉ नहीं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये है इस काम को शॉर्ट करने का। भाई एक तरीका स्टैक है, एक तरीका क्यू है, एक तरीका ट्री है, एक तरीका फॉरेस्ट है, एक तरीका एरे है, ठीक है, ठीक है। आप ग्राफ थ्योरी की चीजों को यूज करते हैं, आप जो चीज यूज करना चाहते हैं आप करिए। हाँ, ये चीज सिर्फ इसी के लिए नहीं एक्सेप्टेबल है, ये कैजुअली नॉर्मली भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे लेंथ फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। वही मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये चीज समझिए कि आप जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आपको ये जो पूरी चीजें बताई जाती हैं, ये इस वजह से बताई जाती है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते। पूरा मकसद यही है, ठीक है। अब देखो, आपने फर्स्ट एलिमेंट देख लिया, एक्सेस करना, लास्ट एलिमेंट देख लिया, एरे में लूप कैसे लगाएंगे। अब इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। आप जब भी किसी कंपनी का एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकालते हैं, ठीक। अब देखिए, तो अब देखो आप क्या कर रहे हो। सेफेस्ट वे टू लूप थ्रू एन एरे इज फॉर। आप वेरिएबल फ्रूट, टेक्स्ट, स्ट्रिंग, आई करते हैं। तो फ्रूट में क्या है, 4 आपने डिफाइन किया, फिर आपने लेंथ डिफाइन किया, फ्लिन फ्रूट में डिफाइन किया एरे की वैल्यू, एफ लेंथ में क्या, एफ लिन में क्या डिफाइन कर रहे हैं, फ्रूट की लेंथ, ठीक। अब देखो, आप टेक्स्ट को लिया आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट में, अनऑर्डर्ड, अब आपने लगाया लूप। लूप में क्या लगाया कि जो वैल्यू है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लूपिंग कर रहे हैं एरे में। एरे को लूप कैसे कर रहे हैं कि भैया 1 2 3 4 एरे है, आपने फ्रूट की लेंथ डिफाइन की, उसको स्ट्रिंग की स्ट्रिंग में, तो फॉर लूप कैसे चला रहे हैं कि एफ जो लास्ट लेंथ है, मतलब एक तरीके से जो नंबर ऑफ वेरिएबल इन द एरे है, उससे आई की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए और आई प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो कि इधर जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, टेक्स्ट क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या चेंज हो जा रहा है, टेक्स्ट में, और फिर टेक्स्ट को आपने लिस्ट में चेंज किया है और फ्रूट आई को प्लस पास करते हुए चले जा रहे हैं, और फिर एंड ऑफ द डे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐड हो जा रहा है। अब ये देखिए, ऐड हो जा रहा है। अब देखो आपने क्या किया, पहले इसको बनाया, ये क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐड हो रहा है, ठीक। आपने लिस्ट उठाया, आपने टेक्स्ट में एक लिस्ट बनाया, और आपने फिर फ्रूट को ऐड किया, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह, यहाँ पे ब्रेक रूल नहीं लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप ब्रेक रूल नहीं लगा रहे हैं, आप यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, आप यहाँ पे लगा रहे हैं लिस्टिंग और अनऑर्डर्ड लिस्ट। आपने सबसे पहले पास किया एक वैल्यू, तो बनाना पास हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह आपने तुरंत डॉट लगाया, फिर आपने दूसरा लिस्ट पास किया अनऑर्डर्ड लिस्ट का, टेक्स्ट में प्लस इक्वल टू, यहाँ पे फिर ऐड हुआ, ठीक है, तो कॉन्कैटिनेट हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट में, फिर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट में, फिर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अब आप इसको इसको एक्सपेरिमेंट करना है, लूप वाला लाइन हटाइए और फिर रन कराइए, देखिए क्या हो रहा है। क्या लूप वाला लाइन हटा के फिर रन कराइए, कुछ हो लूप रहा वाला है, लाइन लगा के देखो बेटा, अभी आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने मैंगो हटाया, ठीक है, पहले इसको समझते हैं लूप कैसे काम कर रहा है, ठीक। मैंगो हटाया और अभी ये नल है, बीच में क्या है, एक नल है, हम रन करा रहे हैं, तो क्या है, एप्पल, लेकिन एक वैल्यू अभी यहाँ पे और है नल की, ठीक है, और जब ये कॉमा हटा देंगे तो नल वैल्यू नहीं रहेगी, ये समझने वाला बात है थोड़ा सा, ठीक। अब आप बात कर रहे हो कि अगर आप लूप हटा दोगे तो क्या होगा, लूप हटा दोगे तो उसकी अनडिफाइंड हो जाएंगी चीजें,
क्यों हो जाएंगी? क्योंकि आपने लेंथ को तो स्टार्ट किया, आपने यूएल डिफाइन किया, आप लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, लेकिन कैसे यहाँ पे आप कुछ पास कर नहीं रहे हैं, तो चीजें क्या हो जा रही है? यहाँ पे आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट को आप प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो कैसे प्रिंट हो रहा है? ये प्रिंट हो रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट के स्ट्रिंग में। इस स्ट्रिंग को आप, इस स्ट्रिंग में आप कोई प्रोसेसिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो चीजें अनडिफाइंड हो जाएंगी ना। समझ में आई कि नहीं है? बस यही। और फिर हमने ये रियल, अब ये रियल define प्रोग्रामिंग है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हेलो, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? हाँ, ये रियल प्रोग्रामिंग है। समझ आया? मुझे लगता है एक बार समझ में आ गया होगा ना। हाँ, ठीक है। यस वही काम है कि ईच एलिमेंट के साथ कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, चार, इन्होंने चार वेरिएबल डिफाइन किया, फिर टेक्स्ट को लिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी डायरेक्ट फंक्शन पे काम कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट डॉट पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे काम किया है इन्होंने। ये डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। यहाँ पे इन्होंने लूप लगाया, यहाँ पे अब फंक्शन में पास कर रहे हैं। फ्रूट्स का एक फॉर ईच माई फंक्शन को पास कर रहे हैं, और एक एक फंक्शन पे ये चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फंक्शन का यूज हो रहा है। एक एरे डॉट ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट का मतलब होता है कि जब ये प्रोग्राम लगता है तो हर एलिमेंट को एरे कॉल करता है फंक्शन की प्रॉपर्टी से। ठीक है, यहाँ पे देखो आप जावा स्क्रिप्ट लिया, यहाँ समझना है कि एरे डॉट ईच फॉर ईच एलिमेंट क्या करता है, यहाँ की आगे बात है। फिर फ्रूट्स पे काम करता है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच माई फंक्शन ये आ गया, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो हो गया, फिर डॉट इनर एचटीएमएल हो गया, फिर ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, नाउ फंक्शन माई फंक्शन वैल्यू, टेक्स्ट में क्या कर रहे हैं आप? लिस्ट की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर वैल्यू कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस? आप इस प्रॉपर्टी के फॉर ईच की प्रॉपर्टी से माई फंक्शन को पास किए हैं, तो माई फंक्शन क्या कर रहा है, और फिर फंक्शन में आप वैल्यू पास किए। यहाँ पे देखिए दो पासिंग चल रही है। यहाँ पे आपने फ्रूट में फॉर ईच में माई फंक्शन पास किए हैं, और फिर माई फंक्शन में क्या पास किए हैं? वैल्यू पास किए हैं, और वैल्यू को आप प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इनर लूप की तरह काम कर रहा है, और फाइनली आपको ये वैल्यू उठा के दे दे रहा है। तो नया क्या समझ में आया ना? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यस सर। एरे इंपॉर्टेंट है। एरे अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा वेबसाइट बना लेंगे, अच्छी वेबसाइट। क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट्स में क्या होता है कि होमोजीनियस चीजें होती हैं और उनको हम स्टोर करते हैं। ठीक है, बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप एरे में उसको स्टोर कर दीजिए। लेंथ हो गया, फर्स्ट लास्ट हो गया, एडिंग हो गया। एरे की एडिंग करना बहुत आसान होता है, अपेंड कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फ्रूट डॉट लेंथ में लेमन में है, तो ऐड न्यू एलिमेंट, तो आप लेंथ में क्या करते हैं? एक लेंथ में एक चीज ऐड कर दे रहे हैं, ये अपेंड कर दे, इसको अपेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंड। लेंथ में एक प्रॉपर्टी को और ऐड करने का क्या करते हैं? अपेंड। यहाँ पे लिखा है ना कि एडिंग एलिमेंट्स विथ कैन क्रिएट होल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि फ्रूट्स के 6वें इंडेक्स में लेमन को ऐड करो, लेकिन लेमन की पोजीशन क्या होनी चाहिए? 5th। 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि 6th में करो, तो क्या होगा? होल्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? होल्स क्रिएट हो जाएगा। और होल्स क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। अब देखो एसोसिएटिव एरे क्या होता है? एसोसिएटिव एरे कुछ नहीं होता है। ठीक है, Many programming languages supports array with named index. Array with named index का
नेम्ड इंडेक्स के साथ जो काम होता है उसको कहते हैं एसोसिएटिव एरेस और हैशेस। हैशिंग पढ़े होंगे आप डेटा टाइप में, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप में पढ़े होंगे, ठीक है। आप इसे देखो ध्यान से, हैशिंग को, यही है हैशिंग और कुछ नहीं है कि इस, अब देखो पर्सन 0 पर्सन 1 पर्सन 2 ये अपने आप में कह रहे हैं, और जॉन टाइप की जितनी चीजें इसी के आगे ऐड होती चली जाएंगी। पर जो फर्स्ट नेम टाइप जितनी चीजें इसी के आगे ऐड होती जा रही हैं, सेकंड नेम की जितनी टाइप की चीजें इसी के आगे ऐड होती जा रही हैं, होती जाएंगी, और एज टाइप की जितनी चीजें इसके आगे ऐड होती जाएंगी। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल एक्स ले रहे हैं और उनकी लेंथ को आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और आपने फिर इसके वैल्यू को पास कर दिया। हैशिंग यही ना होती है कि एक टाइप की चीजों को आप एक कहते हैं ना एक कमांड बना देते हैं और उस कमांड में ऐड करते हुए चले जाते हैं आर्मी को, एक तरह से ऐसे समझिए, एक कमांडर एक, और जैसे ये वाला जो कमांडर है ये आर्मी है, ये नेवी है, ये एयरफोर्स है, तो जैसे 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 लोग, अगर मान लो एयरफोर्स में ऐड करना है तो एयरफोर्स में ऐड होता चला जाएगा, आर्मी में ऐड करना है आर्मी में ऐड करते चला जाएगा, ठीक है, नेवी में ऐड करना है नेवी में ऐड करते हुए चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपने एक पर्सन 0 कौन सा है, वही पर्सन 0 है जॉन, ठीक है, और उसकी लेंथ क्या है, पर्सन की लेंथ, पर्सन डॉट लेंथ क्या है 3। डॉक्यूमेंट इनर दैट पर्सन, ये क्या पास कर रहे हैं कि भाई पर्सन 0 में फिर उन्होंने ब्लैंक छोड़ा है और पर्सन की लेंथ कितनी, तो 0 1 2 3 देख रहे हैं आप, जॉन में क्या है 0 1 2 3, तो क्या हो गया 3। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, ये पर्सन की लेंथ ले रहा है, ये एरे की लेंथ ले रहा है, समझे। पहले ये पर्सन 0 को प्रिंट कराया जॉन था, हाँ, और फिर उसके बाद एक नल कैरेक्टर लिया, हाँ नल कैरेक्टर लिया, नल कैरेक्टर की वजह से स्पेस हुआ, ठीक है, हो गया, हाँ, हाँ, और अगर आप ये नल कैरेक्टर फिर हटा देते हैं, देखिए फिर क्या होता है, फिर वो अटैच्ड आएगा, फिर वो मर्ज कराएगा, अपेंड हो जाएंगी चीजें, इसको अपेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग समझिए। अब यहाँ पे लिखा है जावास्क्रिप्ट डिफाइन द अरे टू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, सम अरेज मेथड्स प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूसिंग करेक्ट। चलिए देख लेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन डिफाइन करने की कोशिश किया गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। Difference between array, in JavaScript array we use numbered indexes, in JavaScript objects we use named indexes, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भैया एरे के, जावास्क्रिप्ट के एरे में और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। भैया एरे में होता है नंबर इंडेक्सेस और ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है नेम्ड इंडेक्सेस। एरे काइंड ऑफ, और इन जनरल अगर कहा जाए तो एरे इज अ काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद नंबर्ड इंडेक्सेस, क्या विद स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद नंबर्ड इंडेक्सेस, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर व्हेन टू यूज एरे, व्हेन टू यूज ऑब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंट है ये समझना कि भाई आप एरे कब यूज करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कब यूज करना चाहते हैं। वी यूज, पहली बात जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट एसोसिएटिव एरे, ठीक है, ये जान लीजिए, आपको समझाने के लिए से था सर पिछली बार जो था। जब हम एलिमेंट्स का नाम स्ट्रिंग में चाहिए होगा, नाम जो है स्ट्रिंग में चाहिए होगा, तो हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे, और जब हमको एलिमेंट्स का नाम नंबर में चाहिए होगा तो स्ट्रिंग का यूज करेंगे। जब हम कलेक्टिव होमोजीनियस चीजें, सुनिए, कलेक्टिव होमोजीनियस चीजें से मान लीजिए कार है, ठीक है, कार में मारुति, टेस्ला, टाटा, महिंद्रा, ये सब क्या है, नाम है ना, तो इसको जब स्टोर करना हो तो क्या चाहिए होगा स्ट्रिंग। हमको ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे तो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमको नंबर में चाहिए, जैसे आपका जो ट्यूटोरियल का नंबर है वो क्या है, नंबर है ना, 8 9 10 7 8 9 10 6 4 3 2 0, तो उसको किस में सेव करना चाहिए, एरे, ठीक है।
ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जब हम एलिमेंट का नंबर, जब एलिमेंट का नेम नंबर्स में चाहते हैं तो नंबर में, और जब एलिमेंट का नेम स्ट्रिंग में चाहते हैं तो स्ट्रिंग के टेक्स्ट। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? yes, sir. हाँ, तो अब आ गया। आप यहाँ समझना है, there is no need to use the JavaScript built-in array constructor new array. Use simple. This will create an array. New array method और this is same. ठीक है, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग में। कोई चीज खराब या गलत तब होती है कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। जब हम इसको यूज करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन बड़े ब्रैकेट से जो चीजें यूज करते हैं वो प्रॉब्लम नहीं करता है। न्यू कीवर्ड यहाँ इन्हों कह रहे हैं कॉम्प्लिकेट करता है कोड को, और हमको कोड हमेशा क्या चाहिए, शॉर्टेड कोड चाहिए। The problem is that JavaScript operator type of returns object. ठीक है, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, यहाँ पे क्या है कि ये ऑब्जेक्ट से रिटर्न करेंगे। टाइप ऑफ हमेशा क्या कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो हम समझ जाएंगे ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है तो ऑब्जेक्ट है, तो टाइप ऑफ इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, सिंपल। अगर यहाँ पे नंबर होता तो क्या टाइप ऑफ होता, एरे। एरे एरे इस एरे में चलिए एक एग्जांपल ले, इस एरे में आप करिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखिए। अब आएगा यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया जाता था टाइप ऑफ ऑपरेटर व्हेन यूज ऑन एरे रिटर्न ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रिटर्न क्या है, नंबर। तो ये यहाँ पे जो टाइप ऑफ एरे है उसकी क्या है, लिमिटेशन है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? टाइप ऑफ ऑपरेटर की क्या है, लिमिटेशन है। टाइप ऑफ हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन कभी कभी टेक्निकली पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ECM में जो हम लोग डिस्कस किए थे, ओपन सोर्स की जो कॉम्बिनेशन जो सोसाइटी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एरे का यूज करती है, ठीक है। किसका यूज करती है,